Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accounting Knowledge. Hope you all are doing very well. In this video lecture, we are going to learn about the business economic of TYBCom class. Okay, as per the Mumbai University syllabus, we are going to learn all business economic of semester 5 of TYBCom class. Okay, so we already have started the chapter 1 of business economic, and the name of the chapter 1 is New Economic Policy 1991. In my previous lecture, I already have explained about what is economic policy, what are the objectives of economic policy 1991. Okay, this is my continuation lecture of chapter 1. So it is request you all, if you have not watched my previous lecture, please watch that. The link of previous lecture is given in the description. Okay, in this video lecture, we are going to learn what is New Economic Reforms 1991. This lecture or this topic is not only important for exam point of view, but it is also important for practical point of view. Means this will help you to know the what is new economic reforms and what are the changes has take place in economic after 1991. So once again, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Okay, share this all lecture to your friends if you like it. Okay, let's move forward. Okay, in this slide we are going to learn about what are the important policy changes in New Economic Policy 1991. Here you can say with a very systematic tree diagram I had explained what are the changes has take place in the new economic policy, and you can see the changes has divided into two parts, that is macroeconomic stabilization and structural reforms. Okay, the macroeconomic stabilization is also called as demand management, and structural reforms is also called as supply management. So these both, that is macroeconomic and structural reforms, we are going to study in detail one by one, okay, in the further slides. But this tree diagram will help you to understand and to learn the topic, to learn the all points within a second. So once again, please read this tree diagram in a detail. Okay, so let's move forward. First we are going to learn about the macroeconomic stabilization. So as I already said, macroeconomic stabilization is also called as demand side. Now what we are going to learn in that? Okay, so what I told, what we are going to learn in this lecture, we are going to learn what are the new economic reforms has take place in 1991, or what are the changes has take place in the 1991 in economic or in the policy. So what are the changes has take place? The changes is take place in such a way that helps to control the demand of the money supply. Okay, so in the macroeconomic stabilization we are going to learn what are the changes has take place which help to control the demand of the money supply. Understood? So here you can see that in the macroeconomic stabilization, the first thing that the changes which has take place that help to control the inflation. Okay, so the first point is that it helps to control the inflation. Now how it helps to control the inflation? With the help of monetary and fiscal policy, the control of inflation has take place in the economic after 1991. Okay, the fiscal deficit was brought down from 7.7% of GDP in 1991 to 4.9% in 1995 and 1996. It's mean that our physical deficit has reduced after 1991. Our physical deficit has reduced from 7.7% to 4.9%. Okay, in this also the government has introduced tight monetary policy. Now what is meant by tight monetary policy? In that tight monetary policy, what the government has do, the government has increased, that is all monetary instrument. Okay, the government has increased
all the monetary instrument. This will help to reduce the money supply in the country. It means that the government has increased, that is CRR, the government has increased SLR. Okay, this all has to be increased by the government. If CRR and SLR is increased by the government, this will automatically help to control the inflation of the country. Now you will say, what is CRR and what is SLR? Okay, so this all is a instrument of monetary policy. CRR means what? That is a cash reserve ratio. Okay, after 1991 the government has increased the cash reserve ratio. Okay, and also they also increase the SLR, that is the statutory liquidity ratio. Okay, so this will help to control the inflation of the country. Okay, students, let me explain you what is CRR, but in my further lecture you will come to know all the monetary instrument in detail. What is CRR? Like, as a depositor, okay, as a depositor, what we have to do? We have to keep deposit in the bank. Okay, what we are doing? We are depositing the money in the bank. In same way, our commercial bank have to do compulsory deposit of their total deposit in the RBI. Okay, the compulsory deposit, the deposit which commercial bank has done with RBI, that is called the cash reserve ratio. Okay, the compulsory deposit which the commercial bank have to do with the RBI, that is called cash reserve ratio. Okay, so these all are the monetary instrument. After 1991, what the RBI has done? RBI has increased all monetary instrument. Okay, अगर RBI ने सारे monetary instrument increase कर दिया, मतलब अगर RBI ने क्या किया? कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज किया, मतलब अब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ता था एज अ डिपॉजिट. अगर उनको आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ता था एज अ डिपॉजिट, सो अब वो क्या करते थे? इवन नॉर्मल पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते थे, बिकॉज उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं रहता था. वो नॉर्मल पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते थे, तो नॉर्मल पब्लिक कॉमर्शियल बैंक से लोन ज़्यादा नहीं लेता था. और अगर नॉर्मल पब्लिक कॉमर्शियल बैंक से लोन ज़्यादा नहीं लेता था, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अपने कंट्री में मनी सप्लाई कम हो गया, मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया. और अगर मनी सप्लाई कम हो गया, तो दिस विल हेल्प यू टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री. तो 1991 के बाद क्या हुआ था? अपने कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या हो गया था? कंट्रोल में आ गया था. Understood? That is our first reform. Second one is that fiscal correction. Okay, after 1991 the fiscal correction also take place. It means that before 1991 our physical deficit was so high. Okay, why it is so high? Because the government are doing lot of expenditure in the non-development activity, which I already explained you in my previous lecture. पहले गवर्नमेंट क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो कहाँ पे करते थे? दैट इज दे आर डूइंग इन अ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लाइक डिफेंस, वॉर, वेपन्स, ओके, इक्विपमेंट्स, ये सब में ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर करते थे. ओके, जिसकी वजह से क्या होता था? अपने कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता था. बट आफ्टर 1991 व्हाट द गवर्नमेंट स्टार्टेड डूइंग? दे स्टार्टेड डूइंग एक्सपेंडिचर इन अ डेवलपमेंट एक्टिविटी. इट्स मीन दैट दे स्टार्टेड डूइंग expenditure in infrastructure, road, dams, okay, making of buildings. Okay, in that if they started doing the expenditure, so what has take place? The automatically our country's growth and development has take place. Okay, again in that fiscal correction, how that take place now? That is the government also reduce the public debt. It's mean that before 1991 the our country has borrowed so many money from World Bank as well as IMF. Okay, that is International Monetary Fund. But or with the help of that they have to pay a huge interest to the World Bank as a IMF. और उसके बाद क्या होता था? अपने कंट्री के ऊपर डेब्ट एंड लोन क्या होता था? कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाता था. Okay, and sometime even the government can't able to pay the interest or the public debt.
understood. But after 1991 what they have done, they started decreasing the public debt. वो क्या करने लगे, वर्ल्ड बैंक से बोरो करना क्या किया, कम कर दिया. और अगर उन्होंने वर्ल्ड बैंक से बोरो करना कम किया तो उनको इंटरेस्ट भी देना कम हो गया. जब उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा था तो ऑटोमेटिकली अपने गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट था वो रिसिप्ट इंक्रीज होने लगा और पेमेंट कम होने लगा. जब रिसिप्ट इंक्रीज होने लगा और पेमेंट कम होने लगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था दैट इज वो क्या होने लगा, फिजिकल डेफिसिट कम होने लगा. ओके, आफ्टर 1991 द गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द वेरियस टैक्स रिफॉर्म्स and as you already know a lot of reforms and lot of changes has take place in the tax. Okay, in after 1991 the government has increased the personal tax rate also. Okay, the government has increased the personal tax rate also. So with the help of that they started collecting a lot of tax or revenue from the government. Okay, then they also introduced the new tax like the corporation tax, wealth tax, personal tax. These all new tax they have introduced after 1991. Okay, they also reduced the custom duty. After 1991 what they have done, they have reduced the custom duty. Okay, उन्होंने custom duty क्या किया था, कम कर दिया था. It was reduced that the maximum rate of custom duty was 250% before reforms, but it has reduced to 40% in 97 and 98. It's mean that 1991 के पहले जो कस्टम ड्यूटी था वो कितना पे करना पड़ता था 250% पे करना पड़ता था. लेकिन 1991 के बाद they have to pay only 40% of their production. Okay, in the year 94 and 95 a service tax introduced. Okay, service tax introduce दिया गया था और जो अभी क्या हो गया that all has collapsed और ये सब service tax और everything comes under the GST. Clear? So that is the second reforms. Third reforms is what, balance of payment adjustment. After 1991, before 1991 हमारा balance of payment कैसे रहता था, unfavorable रहता था. Unfavorable मतलब बिफोर 1991 क्या होता था, दैट इज पेमेंट ज़्यादा था और रिसिप्ट कम था. लेकिन आफ्टर 1991 काफ़ी कुछ चेंजेस उसमें किया गया. क्या चेंजेस किया गया, फर्स्ट चेंजेस डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस अप टू 18 to 19%. मतलब जो भी हमारा रुपीस था उसका वैल्यू क्या किया गया, ऑटोमेटिकली कम कर दिया गया. ओके, कितना कम किया गया था, 18 to 19% क्या किया गया था, वैल्यू को, रुपीस को कम किया गया था. अंडरस्टूड. ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज फॉलो. आफ्टर 1991 क्या किया गया, ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया गया. ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब दैट इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एज वेल एज द फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. ओके, 40% and 60%. Okay, the ratio of that dual is 40% and 60%. Okay, 40% was fixed exchange rate and 60% of fluctuating exchange rate. It's mean that 40% जो हमारा रहता था वो RBI सेटअप करता था, दैट इज कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रेट का रेशियो रहेगा, एंड 60% क्या रहता था, वो डिपेंड होता था मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. तो एक्सचेंज रेट जो है वो क्या था, ड्यूअल सिस्टम में फॉलो होने लगा आफ्टर 1991. ओके, फ्रॉम 93 to 94 फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम वॉज स्टार्टेड फॉलोइंग. ओके, सो इन दैट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन क्या हुआ था, दैट इज the RBI और the government try to control the money supply in the country. और वो कैसे कंट्रोल में आया था, वो कैसे कंट्रोल में आया था, दैट इज वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके मनी सप्लाई कंट्रोल किया गया था, फिजिकल करेक्शन करके, मतलब जो फिजिकल डेफिसिट था उसको भी क्या करके इम्प्रूव करके क्या किया गया था, दैट इज डिमांड ऑफ मनी सप्लाई को कम किया गया था. और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी क्या करके एडजस्टमेंट करके क्या किया गया था, डिमांड साइड को कम किया गया था. सो 1991 के बाद डिमांड साइड मैनेजमेंट में ओनली 3 पॉइंट्स इज दैट इज द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, फिजिकल करेक्शन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दैट. द सेकेंड वन इज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, दैट इज अ सप्लाई साइड मैनेजमेंट.
अभी यहाँ पे क्या किया गया था, मनी सप्लाई, इसकी प्रीवियस वाले में डिमांड ऑफ द मनी सप्लाई को क्या किया गया था, कम किया गया था। यहाँ पे सप्लाई साइड मनी सप्लाई को क्या किया गया था, कंट्रोल किया था। अभी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया था, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। A lot of things has take place in the industry after 1991. क्या चेंजेस हुआ था वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। क्या किया गया था, नाउ आफ्टर 1991 यू ऑलरेडी नो, जो मैंने ऑलरेडी अपना प्रीवियस लेक्चर में बताया, कौन सा सिस्टम, ओपन इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होने लगा था। जब ओपन इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होने लगा था तो क्या हुआ, दैट इज नाउ every company or every country can enter in our company, or every company can get the license easily from the government for doing the business. Okay, so here you can see taking industrial license was closed, मतलब कंपल्सरी लाइसेंस लेने की जरूरत अभी इंडस्ट्रीज को नहीं होती थी। ओनली 5 इंडस्ट्री हु रिक्वायर द कंपल्सरी लाइसेंस, दैट यू ऑलरेडी नो, लाइक लिक्वर हो गया, देन केमिकल्स हो गया। तो ऐसे टोटल 5 इंडस्ट्री है जिनको क्या चाहिए रहता है, कंपल्सरी लाइसेंस। डिफेंस हो गए, इक्विपमेंट के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको कंपल्सरी लाइसेंस की जरूरत होती है। अदर देन दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, बट दे हैव टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट, और जो भी एक्ट उसके अंदर रजिस्टर करना पड़ता था, दैट इज, बट लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर एज अ कंपल्सरी। परमिटिंग ऑफ एफडीआई आफ्टर 1991 के बाद क्या किया गया था, दैट इज देयर इज अ लॉट ऑफ परमिशन हैज गिवन टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द फॉरेन टेक्नोलॉजी। फॉरेनर इजिली क्या करने लगे, अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए। और वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए, दे स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स था वहां पे क्या करने लगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। और वो इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ, 1991 के पहले हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 51% होता था। कहाँ पे, इन अ प्रायोरिटी सेक्टर्स। ओके, बट आफ्टर 1991 इट हैज और इट इंक्रीज अप टू 100%, मतलब टोटल एफडीआई फुल 100% शेयर्स कैन बी परचेज बाय फॉरेन इन्वेस्टर। क्लियर। थर्ड पॉइंट इज दैट रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या किया गया, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो कम कर दिया गया। ओके, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री रिड्यूस फ्रॉम 17 to 3%। सम इंडस्ट्री केप्ट एज अ रिजर्व इन अ पब्लिक सेक्टर। ओके, जो पब्लिक से पहले क्या होता, 1991 के पहले ऑल द कंपनी एंड ऑल द बैंक ट्रीटेड एज अ पब्लिक सेक्टर, बट 1991 के बाद क्या किया गया, डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब दैट इज जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर्स में, दैट इज प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट किया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज को परमिशन दिया गया। ओके, बट देयर आर सम कंपनी लाइक इंडियन रेलवे एज केप्ट एज अ पब्लिक सेक्टर। ओके, that is Indian Railway is kept as a public sector. Okay, removal of MRTP limits. Now first, what is MRTP? Monopoly restrictive trade practice. Okay, earlier 1991 में क्या होता था, that is there is a monopoly policy. What is monopoly? That is there will be a single buyer. ओके, इन सिंगल सेलर विल बी देयर इन द मोनोपोली। ओके, तो पहले क्या होता था, इन लॉट ऑफ सेक्टर्स गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था और गवर्नमेंट इज अ सिंगल मोनोपोली जो क्या करते थे, वो बिजनेस को रन करते थे। लेकिन आफ्टर 1991 के बाद जो भी मोनोपोली था दैट हैज टू बी रिड्यूस, और द लिमिट था दैट हैज ऑल्सो reduce. Okay, monopoly restricted trade practice limit of not expansion of business is removed. MRTP Act replaced by Competition Act 2002. Okay, so that is monopoly restricted trade practice limit of not expansion of business. पहले क्या होता था, जो भी monopoly business था they cannot expand. Okay, and a lot of limit was there, but 1991 के बाद क्या किया गया, that all has to be reduced. जो भी रिस्ट्रिक्शन था वो सारा रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। ओके, और जो MRTP एक्ट था वो MRTP रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया गया था, कंपटीशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया। ओके, सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में पहला पॉइंट क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सेकेंड वन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में ही सेकेंड पॉइंट है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, नाउ
पब्लिक पहला क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किया गया था वो हम लोग ने देखा प्रीवियस स्लाइड्स में। ये स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर्स में, लाइक गवर्नमेंट्स कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुआ था वो हम लोग देखेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या क्या चेंजेस किया गया था, लॉट ऑफ चेंजेस हैज डन इन अ गवर्नमेंट कंपनी. First one is that this is also called as disinvestment, like public sector reforms is also called as disinvestment reforms. तो लास्ट एंड प्रीवियस वाले स्लाइड्स में मैंने ऑलरेडी बताया कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया. जब पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया मतलब दैट इज पब्लिक सेक्टर्स को डिसइन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया गया. ना व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? ओके, so what is disinvestment means what, that is you have to do investment in any company, but when you are taking an investment back from any company, that is called the disinvestment. It's mean that is अगर that is कोई बैंक में क्या होता है, कोई बैंक में गवर्नमेंट का 100% शेयर्स है. ओके, तो वो कौन सी हो गई, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गई, अंडरस्टूड. लेकिन वो जो गवर्नमेंट है उसने अपने शेयर्स को रिटर्न ले लिया. ओके, उसने अपने शेयर्स को रिटर्न ले लिया. तो अभी वो जो बैंक है वो क्या हो सकती है, जब गवर्नमेंट का उसमें से कंट्रोल हट गया, उसने अपने शेयर्स को सेल कर दिया. जब गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को सेल कर दिया, नाउ दैट बैंक कैन बिकम अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, और उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं हो गया. तो अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हैज टेक प्लेस इन दैट वे. मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ था, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टार्टेड आफ्टर 1991. ओके, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर. जो मैंने ऑलरेडी बताया कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने शेयर्स को मार्केट में सेल कर देते हैं, तो गवर्नमेंट का रोल वो कंपनी के ऊपर से खत्म हो जाता है. अंडरस्टूड. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इनटू द प्राइवेट सेक्टर. ओके, इशूइंग ऑफ फ्रेश इक्विटी इन द मार्केट. क्या किया गया, जो भी इवन जो गवर्नमेंट्स बैंक थे उन्होंने क्या किया, फ्रेश इक्विटी मार्केट में इशू करना स्टार्ट किया. और वो जो फ्रेश इक्विटी इशू किया, वो फ्रेश इक्विटी कोई भी परचेज कर सकता था, इवन इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, ओके, एनीवन, प्राइवेट इंस्टीट्यूटर, एनीवन कैन परचेज. और जब कोई दूसरे बाहर के लोग अगर गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स को परचेस करेंगे तो दैट गवर्नमेंट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द दैट इज अ प्राइवेट लिमिटेड. अगर प्राइवेट शेयर होल्डर्स का उसके ऊपर शेयर होल्डिंग पावर ज्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट सेक्टर्स. ओके, इंक्रीजिंग ऑफ कॉम्पिटिशन इन द प्राइवेट सेक्टर. ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया था, प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्रीज दिया गया था इन द पब्लिक सेक्टर्स. ओके, तो अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हैज टेक प्लेस इन अ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स. मतलब ओके, मतलब फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस. ओके, इंश्योरेंस 1991 के पहले क्या था, इंश्योरेंस इज टोटली अ पब्लिक सेक्टर. ओके, पॉलिसीज था, पब्लिक सेक्टर का उसके ऊपर कंट्रोल रहता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था. लेकिन 1991 के बाद क्या किया गया था, इंश्योरेंस सेक्टर को भी ओपन कर दिया गया था, जहां पे प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंश्योरेंस. अंडरस्टूड. Let's move forward in the structural sector reforms. Is in that there is a third point, and that is called trade and capital flow reforms. In that also a lot of changes has take place. Let's see what changes has take place. Trade and capital flow reforms. In that the first point is liberalization of imports. तो already मैंने बताया 1991 के बाद क्या हो गया था, our economic has become open. Once our economic has become open, so there is a free entry and free exit of import and export. Okay, easily import and export has took place. Okay, imports control were virtually abolished, export of some consumer goods. Okay, so पहले क्या होता था, there is a lot of restriction if you wanted to do the imports from any अनदर कंट्री. अगर तुमको दूसरे कंट्री से क्या करना था, गुड्स इंपोर्ट करना रहता था, तो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ लाइक कस्टम ड्यूटी, एंड दैट ऑल ड्यूटी यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट. जो मैंने 250% आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था 1991 के पहले. लेकिन 1991 के बाद वो सब चीज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया. 40% ओनली यू हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी. तो इट्स मीन दैट फिर इजिली पीपल स्टार्टेड डूइंग द इम्पोर्ट. इम्पोर्ट क्या हो गया था, लिबरलाइजेशन हो गया था, मतलब फ्रीडम, इम्पोर्ट्स को फ्री कर दिया गया था. ओके, बट अगेन रिस्ट्रिक्शन वॉज देयर इन सम गुड्स. ओके,
नेक्स्ट वन, रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर. ओके, द ट्रेड एंड टैरिफ में भी काफ़ी रिडक्शन आ गया था. जो मैंने बताया अभी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सब चीज़ कम कर दिया गया था. तो पीपल started doing the import business, okay, in a very high way. Okay, import duty on agriculture product was reduced from 300 to 150%. Okay, so import duty on agriculture, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या हो गया था, 150, मतलब डायरेक्टली 50% कम कर दिया गया था इन अ नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. 20% in 2004 and 5 and 10% in 2007 and 8. तो यू कैन सी इम्पोर्ट ड्यूटी कितना ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज क्या किया गया था, रिड्यूस किया गया था आफ्टर 1991. सो जिसके वजह से इम्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिला आफ्टर 1991. Promotion of export. Okay, after 1991 government started giving the subsidies, the government started giving the incentives to the business sector to do their business as a export way. ओके, अपने बिजनेस को मल्टीनेशनल लेवल पे बनाने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए इवन गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स देना स्टार्ट किया. किसको, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स को. ओके, various incentives and subsidies provided to the exporter in the foreign trade policy. Changes in the exchange rate policy, तो जो मैंने ऑलरेडी बताया 1991 के बाद क्या हुआ, that is a fluctuating exchange rate system started following. Okay, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब जहां पर एक्सचेंज रेट जो होता था वो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. ओके, फॉरेन करेंसी के मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के ऊपर क्या हुआ, डिपेंड होने लगा. क्या डिपेंड होने लगा, अपना एक्सचेंज रेट. 1991 के पहले क्या होता था, इट इज डिपेंड अपॉन, इट इज अ फिक्स एक्सचेंज रेट, जहां पे दो गवर्नमेंट, ओके, या तो गोल्ड के ऊपर या तो गवर्नमेंट के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्या होता था, एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता था. लेकिन 1991 के बाद क्या होने लगा, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. अंडरस्टूड? लेट्स मूव फॉरवर्ड. दैट इज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. इन दैट द फोर्थ पॉइंट इज third points is a financial sector reforms. A huge changes has take place in the financial sector reforms. Okay, now what are the huge changes has take place? Finance, because in the finance sector a lot of things is coming. Okay, काफ़ी कुछ आता है, शेयर मार्केट आता है, बैंकिंग सेक्टर आता है, इंश्योरेंस सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर आता है. दिस ऑल कम्स अंडर द फाइनेंशियल. तो ये सारे सेक्टर्स में काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया था. अंडरस्टूड? आफ्टर 1991 क्या चेंजेस हुआ था, सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है और काफ़ी कुछ चेंजेस बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में किया गया था. ओके, क्या चेंजेस किया गया था, तो जो मैंने बोला, लोअरिंग ऑफ CRR एंड SLR. 1991 के बाद क्या किया गया था, जो हमारा CRR था एंड SLR था उसको क्या किया गया था, रिड्यूस किया गया था. ओके, वो रिड्यूस होने के वजह से कितना रिड्यूस हुआ था, दैट इज जो भी हमारा CRR था दैट हैज रिड्यूस फ्रॉम 15% टू 4.5% इन जून 2003. तो हमारा CRR क्या हो गया था, दैट इज 4.5% इज देयर इन 2003 और राइट नाउ इट इज 4%. ओके, अभी हमारा जो CRR है वो 4%. नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट 4%? ओके, ये 4% होता क्या है, CRR इज, अभी आप लोग काफी कहीं पे भी डालोगे व्हाट इज योर करेंट CRR, तो व्हाट इज योर करेंट CRR, यू विल कम टू नो दैट इज द करेंट CRR रेट इज 4%. अब ये 4% क्या है, ये 4% क्या है, जो भी हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट होता है. ओके, उनके पास जो भी टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट होता है, मतलब ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ओके, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सारा डिपॉजिट जो भी कॉमर्शियल बैंक के पास होगा वो डिपॉजिट का 4% अमाउंट उनको RBI के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है. क्या रखना पड़ता है, एज अ रिजर्व. तो दैट इज कॉल्ड द CRR. तो वो क्या हो गया था, 1991 के बाद काफी रिड्यूस हो गया था. सेम SLR ऑल्सो रिड्यूस. सेटिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट क्या किया गया था, दैट इज डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. ओके,
क्या हुआ था, इंटरेस्ट रेट में भी क्या किया गया था, फ्रीडम दिया गया था. ओके, नाउ द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो रिड्यूस, इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गया था, जिसकी वजह से पीपल क्या करने लगे, इजिली मनी बोरो करने लगे. ओके, capital adequacy norm, a new capital adequacy norm has introduced, and you know what is capital adequacy. The capital adequacy is depend upon the risk weighted assets. Okay, capital adequacy ratio is depend upon the risk weighted assets. Understood? Okay, एंट्री ऑन न्यू प्राइवेट सेक्टर. ओके, 1991 के बाद बैंक में क्या किया गया था, काफ़ी ज़्यादा, ऑलरेडी मैंने बताया 1991 इज कॉल्ड एलपीजी रिफॉर्म्स. तो लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन हैज टेक प्लेस इन बैंकिंग सेक्टर, इन इंश्योरेंस सेक्टर, इन कैपिटल मार्केट, इन शेयर मार्केट, हर एक जगह पे प्राइवेटाइजेशन को एंट्री दिया गया था. क्लियर? सो दैट ऑल हैज टेक प्लेस इन द बैंकिंग सेक्टर. और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ था. So, okay, next one is that capital sector reforms. A lot of changes has take place in the capital sector reform. तो सबसे बड़ा जो changes किया गया था, that changes they started setting up of SEBI. SEBI that is क्या किया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. व्हाट सेटअप इन 1988. वो कभी सेटअप हुआ था 1988, लेकिन जब हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था उसमें सेबी को एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर किया गया था. इट्स मीन दैट नाउ द सेबी हैज दैट इज ऑल राइट्स एंड कंट्रोल टू रन द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया. ओके, हमारा जो सेबी है वो सेबी के पास फुल कंट्रोल, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन हैज डिसाइडेड बाय द सेबी इन द शेयर मार्केट. ओके, सो setting up of SEBI, and after 1991 the SEBI has declared as a statutory body. Okay, issuing of IPO. Okay, a lot of initial public offers started. ऑल सारे कंपनी को चांस दिया गया कि दैट दे हैव टू बी इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, उनको नए शेयर्स मार्केट में इशू करना है और नए इन्वेस्टर्स क्या करना है, कलेक्ट करना है. इंट्रोडक्शन ऑफ दैट इज FII. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FII? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ज़्यादा से ज़्यादा चांस किसको दिया गया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल को चांस दिया गया था टू डू द इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री. Okay, a new market has started, that is derivative market has started. What is a derivative market? It is a such type of market where the price of the commodity as it has depend upon the, that is has depend upon the future, okay, trade and future policy. Okay, here you can see the insurance sector reforms. A lot of changes has take place in the insurance sector also. And what changes has take place again after 1991, that is setting off of IRDA. Okay, what is the full form of IRDA? That is Insurance Regulatory Development Authority Act. Okay, it was introduced in 1991. Okay, and IRDA started its operation from 2000. So 1991 के बाद सेम इंश्योरेंस सेक्टर, जो अपना इंश्योरेंस सेक्टर था वो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में था. इट इज़ अ टोटली मोनोपोली था किसका, इंडियन गवर्नमेंट का. लेकिन 1991 के बाद वहाँ पे भी क्या किया गया था, एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप किया गया, दैट इज IRDA. और अब इंश्योरेंस सेक्टर्स में पूरा किसका कंट्रोल है, IRDA का कंट्रोल है. ओके, बट अगेन जो मैंने ऑलरेडी बताया, इंश्योरेंस सेक्टर में पहले क्या था, ओनली गवर्नमेंट कंपनी कैन रन द इंश्योरेंस सेक्टर. बट आफ्टर 1991 काफ़ी प्राइवेट कंपनीज को भी चांस दिया गया. तो एज यू ऑलरेडी नो दैट इज कोटक LIC पॉलिसी. ओके, फिर आफ्टर देन SBI LIC पॉलिसी, मीन्स ऑल प्राइवेट सेक्टर हैज started giving the different type of policies. Okay, FDI increased from 26 to 49% in that insurance sector. Before 1991 only 26% FDI is allowed. मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेनर ओनली इन्वेस्ट 26%, लेकिन 1991 के बाद इट हैज़ इंक्रीज टू 49%. नाउ द इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन द इंश्योरेंस सेक्टर अप टू द 49%. ओके, सो दिस ऑल चेंजेस हैज टेक प्लेस इन द फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस आया था, कैपिटल मार्केट में लॉट ऑफ चेंजेस आया था, और इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आया था. तो दिस ऑल चेंजेस हैज टेक प्लेस इन इकोनॉमिक आफ्टर 1991. ओके, सो 1991 के बाद
अ लॉट ऑफ चेंजेस आया था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड LPG रिफॉर्म्स. उसको और क्या बोला जाता है? LPG रिफॉर्म्स. उसको और क्या बोला जाता है? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज take place after 1991 that has divided into two types, that is the macro stabilization and structural reform. मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलाइजेशन में क्या किया गया था? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड साइड मैनेजमेंट. वहां पे जो हमारा मनी सप्लाई था, मनी सप्लाई का डिमांड था, उसको रिड्यूस किया गया था. ओके, जब उसको रिड्यूस किया गया था तो उसके वजह से इन्फ्लेशन रेट कम हुआ था. फिर उसके बाद फिजिकल्स में काफ़ी फिजिकल डेफिसिट में इम्प्रूवमेंट आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसके वजह से इम्प्रूवमेंट आया था. नेक्स्ट सेकेंड वन था, दैट इज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग? सप्लाई साइड मैनेजमेंट. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन, दैट इज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. अ लॉट ऑफ चेंजेस हैज टेक प्लेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर में काफ़ी कुछ चेंजेस आया था. ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो में काफ़ी कुछ चेंजेस आया था. और लास्ट वन, फाइनेंशियल सेक्टर्स में काफ़ी कुछ चेंजेस आया था. क्लियर? सो दिस ऑल आर द चेंजेस हैज टेक प्लेस आफ्टर 1991 इन इंडिया. अंडरस्टूड? ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई lecture. Hope you will like it and understand what I explain you. Okay, if you like it, please subscribe my channel. Okay, I will bring more new and new content in my video lecture. I will try to cover whole economic syllabus of the Mumbai University. Thank you.